Hello, let us start new lecture over polymer blend and polymer composites. But before that, I would like to take the question from the assignment short note 1 where it has been asked number of functionality in the two formulae given in the assignment. The number of functionality in first is 2, that is actually vinyl chloride, and CH2 double bond CHCl is the monomeric structure, and in the second molecule the number of OH groups are the number of functionality. So you can solve easily about the number of functionality. Let us start the quiz over the conducting polymers and the biodegradable polymers. First question is, what is the non-conventional features of conducting polymers? Non-conventional features means actually metallic conductors are due to the free electrons in their valence shell, and they have some different type of properties like malleability, ductility, and number of free electrons to conduct the electricity. But in conducting polymers are basically conducting electricity due to the conjugated pi electrons. Secondly, they may be doped different ways as we have studied. But one more thing is there. The polymers are light in weight and they are having non-corrosive nature. They all are the different properties or the features which is apart from the or unlike from the metallic conductors. Give two examples of conducting polymers. We have already noted polyaniline and polypyrrole, polythiophene. What is the need of biodegradable polymers? As we discussed, biodegradable polymers are now the requirement because most of the polymers are affecting our environment. They are creating a lot of solid waste, and therefore it is very much important to have more and more biodegradable polymers so that the environment will be clean and no solid waste will be created. Applications of biodegradable polymers well discussed in tissue engineering as a stent in the heart surgery and for the packaging materials of especially the cosmetic things. So you can list the applications of biodegradable polymers. Now come to the frequently asked questions. Describe in brief about conducting polymers with their applications. It is all well discussed. Conducting polymers क्या हैं और उनके applications क्या हैं. What are the conditions due to which a polymer becomes conducting? Good question. वो कौन सी conditions हैं जब एक पॉलीमर कंडक्टिंग पॉलीमर हो जाता है? नॉर्मली पॉलीमर तब कंडक्टिंग पॉलीमर होता है जब उसके पास ऐसे सेट ऑफ रेजिडुअल चार्जेस या
कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो पॉलीमर कंडक्टिंग पॉलीमर हो जाता है. इट मीन्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज द conjugated pi electrons and or residual charges over the polymers. This property is existing in intrinsically conducting polymers. Secondly, in case of extrinsically conducting polymers, we may enhance the conductivity of the polymers by N type of doping, P type of doping, or mixing of some materials which are having conductivity, or blending of the polymers. So these are the conditions through which a polymer becomes a conducting polymer. Discuss about the structure and applications of the following. Already discussed polypropylene and polyaniline. Write a brief note on biodegradable polymers. This is also a frequently asked question. Let us move to the next topic, that is polymer blend. First, we will discuss what is blending. Blending is a common term and it is just a mixing of two things which are having or which may have somewhat different but similar properties, not the same, similar properties, and mixed together to have or to form a new type of material that is called as blending. यानी अगर दो लगभग समान चीजों को मिलाकर एक नया मटेरियल, एक नई चीज बनाई जाए तो इस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं. जैसे अगर हम दो ऑयल मिला दें, जैसे मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में ब्लेंडिंग हो जाएगी, यानी वो ब्लेंडेड ऑयल कहलाएगा. उसी तरह से प्लाईवुड है और माइका है. प्लाईवुड के ऊपर अगर हमने माइका लगा दिया, प्लाईवुड स्ट्रेंथ दे दिया, माइका ने स्मूथनेस दे दिया, तो एक तरीके की ये ब्लेंडिंग होगी. तो दिस इज ए कॉमन टर्म दैट इज कॉल्ड एज blending. So, what are the polymer blends? Polymer blend is that in which at least two polymers are blended together to create a new material with different physical properties. Different physical properties. It means जब दोनों मिलाए जाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बॉन्डिंग, उनमें अट्रैक्शन या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नई बदल करके आ जाती हैं, जिससे उनकी यूटिलिटी, उनका एप्लीकेशन और अच्छा या ज्यादा हो जाता है. ऐसे कॉम्बिनेशन को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं. और अगर ये दो पॉलीमर के बीच में है तो उसे हम पॉलीमर ब्लेंड कहते हैं. नॉर्मली पॉलीमर ब्लेंड जैसे दो पॉलीमर को मिलाने पर जब बनते हैं तो एक आप येलो एंड ब्लू, ये एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि ये दो पॉलीमर का इमेजिनेशन है. फर्स्ट पॉलीमर येलो कलर का, दूसरा पॉलीमर है वो ब्लू कलर. ये ऐसे एक दूसरे में मिक्स किए गए हैं ताकि एक नया पॉलीमर बन जाए और ऐसे पॉलीमर की यूटिलिटी ज्यादा हो. इस पर्पज से इसे बनाया गया. What are the different properties of the polymer blends? Appears as separate phases when viewed under a microscope. यानी मैक्रोस्कोप अगर सतही तौर पर देखा जाए तो कोई अंतर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता. ऐसा लगता है सब पूरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तरह का है. लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो तब पता चलता है कि नहीं, वो अकेला मटेरियल नहीं है बल्कि एक से ज्यादा मटेरियल है. यानी माइक्रोस्कोप में वो फेजेस अलग अलग दिखाई देते हैं. प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पॉलीमर्स. यानी जब एक नई प्रॉपर्टी आती है तो ऐसा नहीं कि कोई अचानक कोई नई प्रॉपर्टी या कोई
म्यूटेशन की प्रॉपर्टी दिखती है, वो वही प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती हैं जो नया पॉलीमर बनता है। तो इंडिविजुअल पॉलीमर की प्रॉपर्टी कहीं पर भी, यानी अकेला जो खुद की प्रॉपर्टी वो समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि वो और जुड़ करके अच्छा हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वांडर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मली दो पॉलीमर जब मिलाए जाते हैं तो उनके आपस में चूंकि नया कोई कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, वो एक तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या कभी कभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिनमें कि सीधा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट न हो, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इनवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के बीच में कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस यानी वांडर वाल टाइप का कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, जिससे वो एक साथ और ज्यादा अटैच होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वांडर वाल यानी या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में रहता है। लेकिन वो जब दो पॉलीमर मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो इनकी यूटिलिटी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बड़ा चेंज दिखता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? सबसे इंपॉर्टेंट है एबीएस, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी फ्यूज्ड मास जिसको कि हम बार बार उसका शेप मोल्ड करके हम बदल सकें, तब तक वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मास है। एबीएस अगर आप देखें तो बहुत सारे हार्ड प्लास्टिक देखने में जो लगते हैं, चाहे वो मिक्सर में हो, जूसर में हो, या कार के बहुत सारे चीजों पर आपको एबीएस लिखा मिलेगा। एबीएस का फुल फॉर्म है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। ये पॉलीमर कुल 3 तरह के आपको मोनोमर्स दिख रहे हैं, इनको मिला करके तब एक प्लास्टिक फ्यूज मास बनाया जाता है जिससे कि एबीएस बनता है। और एबीएस की अगर प्रॉपर्टीज देखें, इट इज हैविंग हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस, यानी वो जल्दी से अगर हैमरिंग हो तो उसमें टूटने के चांसेस कम होते हैं। हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर यानी वो जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगा। और मोल्डेबिलिटी यानी हम उसे जिस शेप में चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं, मोल्डिंग आसान होती है। इसलिए ये पॉलीमर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। दीज हैव प्लीजिंग अपीयरेंस यानी ये देखने में भी स्मूथ, अच्छे और कलरफुल बनाए जा सकते हैं। इसलिए भी जैसे कार का डैशबोर्ड है या इस तरह की चीजें जहां पर की स्ट्रेंथ भी चाहिए और अपीयरिंग प्लीजिंग अपीयरेंस भी चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए और मजबूत भी चाहिए, तो ऐसे समय में एक ब्लेंडेड पॉलीमर यूज होता है। देखने में वो भी प्लास्टिक मास की तरह या सामान्य प्लास्टिक की तरह दिखता है, लेकिन वो सामान्य नहीं बल्कि वो ब्लेंडेड पॉलीमर होता है। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल फॉर मेकिंग पैनल्स, डोर कवर्स, डोर हैंडल्स एक्सेट्रा। हैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुकिंग, और इसलिए ऐसे समय में हम पॉलीमर ब्लेंड यूज कर सकते हैं। अगर हम इस पॉलीमर को की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, इस पर मेटालिक लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू चढ़ा दें, तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटेड एबीएस इज यूज्ड इन मेकिंग नेम प्लेट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, ताकि अगर उन्हें हमें रिफ्लेक्टर की तरह यूज करना है, नेम प्लेट बनाना है, ऐसी चीजों के लिए हम फिर उसमें एक फाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसकी एप्लीकेशन को, यूजेस को बढ़ा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड polymer blend called ABS. Now others are polycarbonates, PC, ABS blending, यानी दो को मिला, ABS को पॉलीकार्बोनेट्स के साथ मिला दिया जाए तो और भी इसकी यूटिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल हाउसिंग या कोई
मशीन बनानी है, मशीन के पार्ट्स बनाने हैं जहां स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, फाइन मटेरियल देखने में हो और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो हम पॉलीकार्बोनेट्स और एबीएस ब्लेंड यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से नाइलॉन 6 और पीसी ब्लेंड्स, दे आर यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स। जैसे लॉन टेनिस है या जो हॉकी स्टिक्स हैं, ऐसे समय में जहां की हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और उसमें लाइट वेट भी चाहिए, ऐसे स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हम अगर किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस का बनाएं तो वो हेवी हो जाएगा और उसमें स्ट्रेंथ तो रहेगी लेकिन उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है। ऐसे समय में हम यूज करते हैं पॉलीमर्स, और पॉलीमर में कौन से? ब्लेंडेड पॉलीमर, जो कि कई बार स्टील की तरह उनकी स्ट्रेंथ होती है और जो वेट है, क्योंकि डेंसिटी कम है तो उनका वेट बहुत ही कम होता है, लाइट वेट होते हैं। और ऐसे इक्विपमेंट जैसे रैकेट्स, लॉन टेनिस रैकेट्स या जैसे हॉकी स्टिक्स, इन सब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीएमाइड्स, पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड पॉलीमर, इट इज यूज एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, यानी ऐसी जगह पर जहां पर कि दो वायर जोड़े जाने हो वहां उसको कवर कर दिया ताकि वो एक इंसुलेटर की तरह काम करे। अगर आप देखें तो वायरिंग करते समय बीच बीच में एक कनेक्टर्स की जरूरत होती है, तो एक तो इंसुलेटर की तरह, दूसरे उनमें कनेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ आई थिंक you have been clear about the polymer blends. Polymer blend is also a future polymer. अभी भी बहुत सारे पॉलीमर ब्लेंड बनाए जाने हैं, बन रहे हैं, जिनका यूज अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की हो, एयर स्पेस इंडस्ट्री हो, रेलवेज हो, कई जगहों पर धीरे धीरे यूज इनके बढ़ रहे हैं। जहां पर भी ऐसे स्ट्रेंथ और स्मूथनेस और गुड लुकिंग, इन सब की जरूरत है, लाइट वेट की जरूरत है, स्ट्रेंथ और लाइट वेट की जरूरत है, तो ऐसे समय में पॉलीमर ब्लेंड को हम यूज कर सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट, that is polymer composites. Polymer composites are materials made from two or more constituent materials with significantly different physical or chemical properties. अब ये दो ऐसे मटेरियल से मिलके बनता है जो कि जिनकी आपस में फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो सकती है। उनका अपीयरेंस, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये अलग अलग हो सकती हैं। कंपोजिट अगर देखें तो कंपोजिट मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक कंपोजिट अलग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोजिट अलग हैं, या मेटेलिक कंपोजिट्स अलग हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीमर कंपोजिट की। और पॉलीमर कंपोजिट का मतलब दो अलग अलग टाइप के, जिनका फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही अलग हो, और उन्हें मिला करके उनको साथ ला करके उनको जोड़ करके अगर कोई नया मटेरियल, नया पॉलीमर बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर कंपोजिट्स। पॉलीमर कंपोजिट्स आर कॉम्बिनेशन, जुड़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमेरिक मटेरियल्स, वन इज कॉल्ड रीइंफोर्सिंग फेज एंड अदर इज कॉल्ड मैट्रिक्स फेज। यानी दो अलग अलग, एक को हम रीइंफोर्सिंग फेज कहते हैं और दूसरे को हम मैट्रिक्स फेज कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर, मिलाकर, ऐसे मटेरियल जिनमें आपस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का अंतर है, मिला के बनाया जाए तो उसे हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। जैसे अगर आप देखें कि एक सामान्य सा एग्जाम्पल लें, डेली अगर रूटीन का, तो जैसे अगर हमें कोई ऐसा ग्लव्स बनाना है, ओवन ग्लव्स बनाना है, तो क्या करते हैं कि अंदर एक लेयर रबर की रख दिया और ऊपर से कॉटन का कवर लगा दिया। तो ऐसे में ये एक काम करता है जो कि दो चीजें हो गई। नंबर एक हुआ क्या
वो हो गया हमारा लेयर ऑफ रबर, और रबर फ्लेक्सिबल बना दिया, ग्रिप आ जाएगी, और ऊपर से उसे लगा दिया लेयर ऑफ एक कॉटन फैब्रिक का, ताकि वो हमें हीट को अंदर आने न दे और ग्रिप और आसानी से बने, जिससे कि हम ओवन में अंदर जो हीट है उससे इफेक्ट न हो। तो ये एक तरीके का बन गया क्या, दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग नेचर के मटेरियल हो गए। फैब्रिक अलग हो गया कॉटन फैब्रिक, और रबर अलग हो गया, रबर का बिहेवियर अलग है और कॉटन का बिहेवियर अलग है। अब इन दोनों को मिला के जो बना, एक तरीके का एक रिजेम्बलेंस दी गई कि ये वो कंपोजिट टाइप का बन गया। लेकिन अगर हम रियल कंपोजिट की बात करें तो दो चीजें जैसा हमने कहा, एक होता है रीइंफोर्सिंग मटेरियल और दूसरा होता है मैट्रिक्स। यानी एक होता है जो शीट ऊपर से है और एक बीच में मटेरियल को हमने फिलअप कर दिया। जैसे कि अगर हमें पहले क्या होता था कि हमें अगर साउंड प्रूफ बनाना होता था तो ग्लास वूल को लिया और बाहर से एक कोई लेयर, किसी प्लास्टिक लेयर या इस तरह की लेयर लगा के और बीच में भर देते थे ग्लास वूल, जो कि इसमें तीसरे नंबर के फिगर पर आपको दिख रहा है, लाइट येलो, या जिसे कि हम क्रीमिश कह सकते हैं, क्रीमिश येलो। ये ग्लास वूल फाइबर है। ग्लास वूल फाइबर एक रीइंफोर्सिंग मटेरियल है, बीच में भरा जाने वाला है। कार्बन फाइबर भी ले सकते हैं, एरोमेटिक एमाइड्स भी ले सकते हैं, जिन्हें एरेमाइड्स कहते हैं। एरेमाइड्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केवलार का। केवलार एक ऐसा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में फिलअप किया जाता है। बाहर से आपको कुछ और दिखता है, अंदर केवलार होता है जो बुलेट प्रूफ को एक रीइंफोर्सिंग फेस के तौर पर काम करता है। और दूसरा होता है मैट्रिक्स फेस। मैट्रिक्स फेस क्या होता है, जो बाहर से आपको कवरिंग दिख रही है, जैसे पॉलिस्टर की कवरिंग हो सकती है, टेरिलीन की यानी पॉलीओलिफिनिक हो सकती है, विनाइलिक पॉलीमर्स हो सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स हो सकते हैं, या पॉलीकार्बोनेट्स के मटेरियल हो सकते हैं। तो इस तरीके से दो फेज हो गए, एक अंदर जो कि उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, अंदर से उसे मजबूत कर रहा है, जिसे हम रीइंफोर्सिंग फेज कहते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स फेज जो उसको कवर करके दोनों को दोनों तरफ से कवर करके और उसे एक नया मटेरियल बना देता है, जिसे हम पॉलीमर कंपोजिट कहते हैं। तो पॉलीमर कंपोजिट के फेजेस हमेशा अलग अलग होते हैं, जबकि अगर हम पॉलीमर ब्लेंड को देखें तो वो तब पता चलते हैं जबकि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक, यानी ऊपर से भी ऐसा लगेगा कि ये दो फेज है, वहां ऊपर से दो फेज अलग अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ सुपरफिशियली भी दो फेजेस अलग अलग दिखाई देते हैं, एक जो इन्फोर्सिंग है, दूसरा मैट्रिक्स। ये बेसिक अंतर है पॉलीमर ब्लेंड और पॉलीमर कंपोजिट्स में। आजकल ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है रेलवेज में या एरोस्पेस में। What are the important properties? Lightweight and have high strength to weight ratio, यानी जितना ये हल्का है उसको देखते हुए इसमें स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा है। मच स्ट्रांगर एंड ड्यूरेबल देन मेटल्स लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम। अब अगर हम कंपेयर करें मेटल से, स्टील यानी एक एलॉय, एल्युमिनियम से, तो उनसे भी कई बार इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है। और ड्यूरेबिलिटी, चूंकि करोसिव नेचर नहीं है इसमें, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हैव हाई करोजन एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस, यानी इसमें करोजन नहीं होने के चांसेस हैं, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ये एग्जिस्ट कर लेता है, यानी डिफॉर्म नहीं होता। हाई फटिग स्ट्रेंथ, यानी थकता जल्दी नहीं। इसका क्या मतलब, हम लंबे समय तक इसे हम यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस हम ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, इसलिए हाई फटिग स्ट्रेंथ। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये पिछले सेमेस्टर में भी आ चुका है, केओलार। केओलार इज व्हाट, एरोमेटिक एमाइड। यहां रीइंफोर्सिंग फेज में देखें तो लास्ट में लिखा है कार्बन फाइबर्स और एरोमेटिक एमाइड्स, एरेमाइड्स। तो ये जो एरोमेटिक एमाइड्स हैं, यानी अगर हम एमाइड्स को देखें CONH ग्रुप, तो CONH ग्रुप हमने देखा कहां पर, जो कि नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में, वहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH का बॉन्ड है। अगर वही बॉन्ड
अगर R के बजाय AR यानी एरोमेटिक रिंग के साथ आ जाए, यानी C6H5 CO और NH बॉन्ड आ जाए, तो CO और NH बॉन्ड चूंकि दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग लग गई, तो इसको फिर हम एलिफैटिक एमाइड नहीं बल्कि एरोमेटिक एमाइड बोलते हैं, और सिंप्लीफाई करके इसे एरेमाइड कहते हैं, एरोमेटिक एमाइड। और एरोमेटिक एमाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केओलार। केओलार इट इज एन एरोमेटिक पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफिनेल फिनेल terephthalamide. This is the chemical name of Keolar, and it is a condensation copolymer of benzene 1,3-dioic acid. बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो एक टॉप पर और एक उसके बॉटम पर लगा दें तो 1,3-डाइओइक COH और COH, और दूसरा मोनोमर है बेंजीन 1,3-डाइएमाइन, यानी उसी तरीके से जहां COH लगा है उसको हटाएं और वहां लगा दें आप NH2 और NH2। तो एक इसी तरह का एग्जाम्पल हमने टेरेप्थैलिक एसिड का देखा था। टेरेप्थैलिक एसिड में क्या है, C6H5 और दोनों तरफ लगा हुआ है C6H6 एंड दोनों तरफ लगा हुआ है COOH एंड COH। तो इस तरीके से ये हो गया बेंजीन 1,3-डाइओइक एसिड और बेंजीन 1,3-डायमीन, यानी उसी COH को हटा के हम अगर NH2 ग्रुप लगा दें तो हो जाएगा बेंजीन 1,3-डायमीन। नाउ द रिएक्शंस यहां देखिए, बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड, नॉट 1,3, and benzene 1,4-diamine. The position is 1, 2, 3 and 4. So it is 1,4 benzene dioic acid, COH COH दोनों साइड में बिल्कुल स्टेट सामने सामने, उसी तरह से उसी पोजीशन पर लग गया क्या, NH2। तो ऐसे में ये बन जाता है बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड एंड बेंजीन 1,4-डायमीन। जब ये दोनों मोनोमर अलग अलग मोनोमर यानी को पॉलीमराइजेशन करेंगे तो OH और H जैसा ब्लू कलर के ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ड्रॉप डाउन हो जाते हैं और इस तरीके से वो बना लेते हैं H2O, और H2O बनते ही ये जो CO और NH है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोनों तरफ अगर देखें तो बेंजीन रिंग आ गई। आप कंपेयर करें नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 से, तो वहां पर भी CONH बॉन्ड है, लेकिन उसमें एरोमेटिक रिंग ना होकर के एलिफैटिक स्ट्रक्चर है, यानी एक तरफ CH2 5 लगा होता है CO और दूसरी तरफ लगा होता है CH2 6 और NH। तो इस तरीके से ये रिपीट यूनिट थोड़ा रिजेंबल करती है, वो है नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6,6 से, जहां पर CONH बॉन्ड होता है। वो एलिफैटिक एमाइड्स हैं और ये एरोमेटिक एमाइड है। Aromatic amides are more symmetrical and they are well arranged symmetrically, and therefore they are having great strength and lightweight and used in making bulletproof like uh, articles. Now, what are the properties of Kevlar? Lightweight and has high strength, thermally stable. It is all similar to all type of composite materials. Resistant to impact and abrasion. Abrasion यानी खुरचना, आसानी से इस पर आप मार्क नहीं बना सकते, खुरच नहीं सकते इसे। Used in making racing car tires, bulletproof jackets and boat hulls. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रॉपर्टीज हैं और साथ में यूजेस जहां जहां ये यूज होता है। तो इस तरह से केवलार एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे मटेरियल में। काइंडली करेक्ट इट इज बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड एंड बेंजीन 1,4-डाइएमीन। नाउ द एप्लीकेशंस in general of composites, aircraft and space industry, automotive industry, railways, civil construction works, ये इमर्जिंग मटेरियल्स हैं। अगर आपको लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए
जैसे कि एयरक्राफ्ट में चाहिए, स्पेशली एरोस्पेस में हमेशा लाइट वेट और स्ट्रेंथ और फटिगलेस स्ट्रेंथ के मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम यूज करते हैं, वो है कंपोजिट मटेरियल्स। तो सामान्य तौर पर हम इसे रेलवे जैसे, अगर हमें अच्छी ट्रेन या बुलेट ट्रेन बनानी है, अंदर से हमें उसे स्मूथ भी रखना है और उसकी शाइनिंग और उस मटेरियल को ड्यूरेबल भी बनाना है, इम्पैक्ट कहीं उस पर अगर हो तो उसको भी बियर करने की कैपेसिटी हो, एब्रेशन रेजिस्टेंट हो, करोजन फ्री हो, तो ऐसे मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं पॉलीमर कंपोजिट्स। So this is all about the polymer composite and polymer blends. Let us discuss the other questions and quizzes. What are the polymer blends? We discussed already. In polymer blend, polymers are covalently bonded with each other. No, they are bonded with van der Waals force of attraction. It is a false statement, and either they are dipole-dipole or hydrogen bonding type of force of attraction. What are the composite? It is well discussed. Name two components of composites, that is reinforcing and matrix. ये दो phases होते हैं. Now frequently asked questions. Write a note on polymer composites. You can write simply what are the composites, give their classification and advantages. तो अलग अलग टाइप के कंपोजिट्स जिसमें एक केवलार. ओके, विल मीट फॉर द नेक्स्ट, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. अभी हमने एक मैसेज शूट किया है, आगे हम इम्पार्टस से भी लेक्चर लाइव ले सकते हैं. सो यू मस्ट बी having some email from Impartus, और अगर ऐसा नहीं है, राइट मी. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. 2 लोगों ने असाइनमेंट जमा कर लिया है और लास्ट डेट तक उम्मीद करते हैं सभी लोग जमा कर देंगे. ओके, थैंक यू.